This is Uniba Makbool, vocational trainer IT, Indus Edu Train, under the mentorship of Miss Misbah Hassan. My today's topic is about networking concepts, and this topic is aimed for the students of level 2. So let's start with the basic understanding of what actually network is. Now, what basically network is? What is network? In our daily life, we come across different types of networks. Say, network of roads, railway lines, canals, etc. Communication network of your telephone system, mobile system, which enables you to talk to anyone, anywhere, anytime. Networking of your banks, ATMs, right? Radio, television broadcast programs across the globe, right? That is the network. Now, your computer network, that's the daily meaning of the network. Now, what about the computer networks? What about your computer networks? Your computer network has an extended power of computer. It has extended power of computer because it uses the computers, and it's beyond the expansion of your room where you are sitting, right? Say when two users have simultaneous conversation with the help of internet, via internet, when two users are having the simultaneous conversation, अगर दो यूज़र्स आपस में एक साथ बात कर रहे होंगे इंटरनेट के हेल्प से, इंटरनेट की मदद से, तो दैट्स नोन एज कॉन्फ्रेंसिंग. और अगर उस प्रोसेस में आपका वीडियो भी इन्वॉल्व है, लाइव वीडियो इन्वॉल्व है, व्हेन दिस प्रोसेस इज सप्लीमेंटेड बाय लाइव वीडियो, देन इट्स कॉल्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जो आप मोस्टली देखते हैं जो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह हमारे होते हैं, right? So that's possible. That's the expansion of the computers, which has been aided by the computer network, right? Now, what is computer network? Question is, what is computer network? A computer network can be defined. A computer network can be defined. A computer network can be defined as group of computers and peripheral devices. A computer network can be defined as a group of computers and peripheral devices that are linked together for the purpose of sharing. That are linked together for the purpose of sharing data. Okay, that's the definition of computer network. A computer network can be defined as a group of computers and peripheral devices that are linked together for the purpose of sharing data, sharing information, right? जैसे कि not only data and information but also hardware resources. जैसे कि आपका network में दिखाती हूँ. For example, what is network? Network is like, these are the computers, many computers that are linked together, and also here is a printer. These are computers and this is printer, and these computers are linked to this printer also, right? So this is known as the network of computers. And at least for a network, basic requirement
for having a network, what you call a network, how you will designate it as a network, at least 2 computers are needed. कम से कम 2 कंप्यूटर्स की ज़रूरत है नेटवर्क बनाने के लिए. मतलब एक सफाइस नहीं कर सकता है, कम से कम आपको 2 कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ेगी टू मेक ए नेटवर्क. इज इट फाइन? सो दिस इज़ द मेन थिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द नेटवर्क. अब ये तो था कि नेटवर्क क्या होता है, कि मतलब ये एक सिस्टम, ऐसा सिस्टम है जिसमें मल्टीपल कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं ताकि वो रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं. और ये कंप्यूटर्स जो है ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, और या तो आपस में कम्युनिकेट करके बात कर सकते हैं ये 2 कंप्यूटर्स, या यहाँ पे दूसरा और 2 कंप्यूटर्स लेंगे, ये भी है. या तो ये आपस में कम्युनिकेट करके काम कर सकते हैं इन ए नेटवर्क, होल नेटवर्क जो ये कहलाता है, या ये इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकते हैं, और दे कैन वर्क इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. ठीक है. अब जो ये कंप्यूटर्स आपस में लिंक्ड है, जो आप देखते हैं ये कनेक्टेड है, दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ केबल्स, with the help of telephone lines, with the help of radio waves, with the help of infrared light beams, right? तो इन चीज़ों के साथ इन चीज़ों के थ्रू हम इनको कनेक्ट कर पाते हैं. Is it fine? Now, coming to the network architecture. अब हमें नेटवर्क आर्किटेक्चर की बात करनी है. नेटवर्क आर्किटेक्चर की बात. और नेटवर्क आर्किटेक्चर में आपके 2 मेन चीज़ें आती है. नेटवर्क आर्किटेक्चर में आपकी 2 मेन आर्किटेक्चर्स है. एक है आपका P2P आर्किटेक्चर, दूसरा है आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. P2P architecture and client server architecture. P2P means peer-to-peer. P2P means peer-to-peer. First of all, we will discuss P2P, peer-to-peer architecture. Peer-to-peer architecture क्या होता है? इसमें आपका जो नेटवर्क डायग्राम होता है इन कंप्यूटर्स का, it's like this. These are the computers. And each computer is connected to another. हर एक कंप्यूटर दूसरे के साथ कनेक्टेड है. और इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे ये फ़र्क पड़ता है कि डायरेक्टली ये आपस में डेटा शेयर कर सकते हैं. ये आपस में डायरेक्टली डेटा शेयर कर सकते हैं. मतलब ये कंप्यूटर इसके साथ डायरेक्टली सेंड कर सकता है डेटा, ये कंप्यूटर इसके साथ डायरेक्टली सेंड कर सकता है डेटा. तो ये आपका P2P है. इसके साथ हम बात करेंगे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की. क्लाइंट सर्वर वाले आर्किटेक्चर की. क्लाइंट सर्वर में क्या होता है? उसमें 2 चीज़ें हैं. एक तो है क्लाइंट, दूसरा है सर्वर. ये है क्लाइंट, ये है सर्वर. तो ये कैसे काम करता है? व्हाट इज क्लाइंट एंड व्हाट इज सर्वर? जो आपका क्लाइंट होता है ये सिंपली कोई, ये भी कंप्यूटर होता है, वो भी कंप्यूटर होता है, क्लाइंट भी कंप्यूटर होता है, सर्वर भी कंप्यूटर होता है. लेकिन सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर होता है. सर्वर इज द पावरफुल कंप्यूटर. और ये क्या होता है, काम कैसे करते हैं ये? क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को और सर्वर वापस उसको रिस्पॉन्ड देता है. Server sends the request, client sends the request to the server and server responds back with the result. तो ये आपस में कैसे करते हैं काम? ये जो सर्वर्स है, they are basically specially dedicated systems, computers that provide service to other computers, means your clients. जो सर्विसेज, क्लाइंट वो होता है जो सर्वर की सर्विसेज को यूज़ करता है. ठीक है. जैसे आपके कॉलेजेस में बैकएंड पे एक सर्वर रखा जाता है जिसमें सारे कॉलेज के, चाहे एडमिशन डिपार्टमेंट है, लाइब्रेरी डिपार्टमेंट है, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है, सबके डेटा रिकॉर्ड्स एक जगह है सर्वर पे, और बाकी डिपार्टमेंट्स उस डेटा को एक्सेस करते रहते हैं.
तो क्लाइंट यहाँ से क्वेरी देता है, वहाँ से सर्वर उसको रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर देता है. इज इट फाइन? सो दैट्स द क्लाइंट सर्वर मॉडल ऑफ आर्किटेक्चर. मतलब क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट देता है, सर्वर रेस्पॉन्स विद द रिक्वेस्ट. मतलब सर्वर एक्ट्स एज अ डेटा स्टोर. तो लेकिन इसके बरक्स जो हमने P2P देखा अभी, दिस मॉडल ऑफ आर्किटेक्चर P2P, इसमें जो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, इसमें ही कोई एक कभी एज अ क्लाइंट काम करता है, कोई एक कभी सर्वर क्लाइंट करता है. इसमें कोई भी डिजिग्नेटेड क्लाइंट सर्वर नहीं होता है. इसमें सम कंप्यूटर at one time can work as client and at other time the same computer can work as server. So there is no designation of client and servers. So this P2P architecture model can be used in your small offices, small departments, within departments of the big company or other things, right? फिर आपका क्या आता है इसके बाद? ये तो था नेटवर्क आर्किटेक्चर की बात. इसके बाद आपका आता है एडवांटेज ऑफ योर नेटवर्किंग. एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग. तो अगर हम एडवांटेज की बात करें, एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग की बात करें, तो उसमें जो मेन चीज़ आपकी है सबसे पहले वो है डेटा शेयरिंग. पहला एडवांटेज जो आपका है इसमें वो है डेटा शेयरिंग. डेटा शेयरिंग में हम क्या करते हैं कि फाइल कोई क्रिएट हमने की, उसको एक कंप्यूटर पे रखा गया, वो हम दूसरे कंप्यूटर पे एक्सेस कर सकते हैं जो आपस में कनेक्टेड हो, ओवर द नेटवर्क कनेक्टेड हो. मतलब आपके इस कंप्यूटर पे कोई फाइल है, आप उसको इस कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हैं बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर. मानो कोई प्रेजेंटेशन फाइल, स्प्रेडशीट फाइल आप यूज़ कर सकते हैं. सो दिस इज़ द डेटा शेयरिंग. दूसरा एडवांटेज इसका जो है वो है हार्डवेयर शेयरिंग. हार्डवेयर शेयरिंग में क्या आता है? आपका नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स है, आपका नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स है और यहाँ आपका मानो प्रिंटर है. तो इसके बजाय आपका एक कंपनी है, आपका एक यूनिट है, वहाँ आपको प्रिंटर की ज़रूरत होगी ऑब्वियसली. तो इंस्टेड कि आप 10 प्रिंटर्स खरीदें, आप एक ही खरीद सकते हैं और ये एक ही प्रिंटर आप शेयर कर सकते हैं, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी. तो यहाँ पर जो आपका हार्डवेयर का कॉस्ट भी रिडक्शन हो जाता है. कॉस्ट रिडक्शन भी आपका आ जाता है क्योंकि आप एक ही प्रिंटर सारे कंप्यूटर्स के साथ विद इन द डिपार्टमेंट शेयर कर रहे हैं. सो दैट्स एन अनदर एडवांटेज. थर्ड एडवांटेज इज, थर्ड वन इज इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग. इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग. इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग में क्या होता है कि आपको, अगर आप एक कंपनी में हैं या स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं या किसी भी इंटरनेट कैफ़े में हैं, एक ही इंटरनेट कनेक्शन हम खरीद सकते हैं और उसको सारे कंप्यूटर्स पे शेयर कर सकते हैं अक्रॉस द नेटवर्क ऑफ द कंप्यूटर्स विच विल बी लिंक्ड टू ईच अदर. एक ही इंटरनेट कनेक्शन खरीदा और उसको सबके साथ शेयर किया. इससे मतलब ये नहीं करना है कि हमें अलग अलग कंप्यूटर्स के लिए मल्टीपल इंटरनेट कनेक्शंस खरीदने पड़ेंगे. यू कैन यूज अ सिंपल सिंगल इंटरनेट शेयरिंग. another advantage, that is efficient use of storage media. Efficient use of storage media. इसका क्या मतलब है? अगर हम, अच्छा है कि इट्स बेटर टू स्टोर ए शेयरेबल एप्लीकेशन या डेटा ऑन नेटवर्क ड्राइव दैन टू स्टोर ए कॉपी ऑफ एप्लीकेशन ऑन ईच यूजर स्टोरेज डिवाइस. मतलब ऐसा होता है, आपका एक क्लाउड स्टोरेज है, क्लाउड स्टोरेज. आपने एक कोई एप्लीकेशन जो सबको चाहिए वो हमने एक ही सेंट्रल लोकेशन पे रखा, जो क्लाउड डेटा का कॉन्सेप्ट है.
फिर जिसको जब चाहिए वो उसको उस टाइम एक्सेस कर सकता है, चाहे ये करे एक्सेस या ये या ये या ये, मतलब या आप एक ही हार्ड डिस्क यूज़ कर सकते हैं, एक ही सर्वर में एक बड़ी सी हार्ड डिस्क यूज़ करो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द स्मॉल हार्ड डिस्क इन डिफरेंट कंप्यूटर्स. सो दैट कैन बी द एफिशिएंट यूजेज ऑफ द स्टोरेज मीडिया. दूसरा आपका है इसका एडवांटेज, फिफ्थ वन इज प्रिजर्विंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन प्रिजर्वेशन, प्रिजर्विंग इंफॉर्मेशन, इन्फो. तो बैकअप जब एक ही सेंट्रल लोकेशन पे रहेगा, मीन्स यू डोंट हैव टू कीप इट सेपरेटली ऑन डिफरेंट मल्टीपल कंप्यूटर्स. अगर कहीं पर कुछ भी आपको ढूंढना है तो आपको बैकअप एक ही लोकेशन पे होगा, सो इट्स विल बी वेरी इजी फॉर यू टू लुक फॉर द लॉस्ट आइटम्स, राइट. सिक्स्थ एडवांटेज इज एफिशिएंसी. एफिशिएंसी क्या है? अगर नेटवर्क में आप क्या कर सकते हैं, डिलीशन करनी है, कहीं पे कोई मॉडिफिकेशन करनी है, अपडेशन करनी है, अपग्रेडेशन करना है सॉफ्टवेयर का या डेटा का, वो आपको एक ही पॉइंट पे करना पड़ेगा जो सेंट्रली लोकेटेड होगा. फिर वो सारे में खुद ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बाकी कंप्यूटर्स पे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सारा सेंट्रली कनेक्टेड होगा नेटवर्क की मदद से. सो इससे क्या होगा, इससे ज़्यादा एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आपके सिस्टम में आ जाएगी. ठीक है, इससे ज़्यादा आपके इसमें एफिशिएंसी आ जाएगी. अनदर वन इज redundancy. Redundancy means repetition. जो आपका नेटवर्क है, it reduces the need for hard copies of all the documents. कैसे? By sharing the soft copy of the document of the file over the network. नेटवर्क पे ये soft copy share करेगा, so you don't need to get hard copy for everything. Then another advantage, that is quick document delivery. Quick document delivery में क्या होता है? It provides you the facility to instantly deliver soft copies from one computer to another throughout the world. अब देखते हैं ब्लूटूथ जो इंफ्रारेड का यूज़ करता है, इंफ्रारेड वेव्स का यूज़ करता है, तो उसमें एज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी आप कैसे डॉक्यूमेंट्स को क्विकली सेंड कर पाते हैं एक दूसरे को, राइट. नाउ दिस वाज अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क्स, और यू कैन से द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नेटवर्क. उसके बाद आपका जो एक और है वो है टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स. टाइप्स ऑफ नेटवर्क. तो इसमें आपके जो टाइप्स है, इसमें आपके 6 टाइप्स आते हैं. यू हैव 6 टाइप्स ऑफ नेटवर्क. एक तो आता है लैन, दूसरा आता है आपका मैन, थर्ड वन इज वैन, फोर्थ वन इज पैन, fifth one is CAN, and sixth one is SAN. मगर जो पहले 3 हैं, they are the most commonly used networks, right? इसमें भी LAN और WAN ज़्यादा पॉपुलर है. लोकल एरिया नेटवर्क, LANs, MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, CAN is campus area network, and SAN is storage area network. But let's talk about LAN, local area network. It stands for local area network. ये acronym है local area network का. It's diagrammatically I can show you like this. ये है आपके कंप्यूटर्स जो कनेक्टेड है. मानो यहाँ पर आपका ये सर्वर है, ये आपके कंप्यूटर्स अलग अलग नोड्स है, कंप्यूटर नोड्स. ये आपका केबल है, इथरनेट केबल, जिसके थ्रू ये कनेक्टेड है. तो लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होता है, इसमें जो आपके कंप्यूटर्स है या डिवाइसेस है, मानो प्रिंटर भी हो सकता है, कहीं पे आपका प्रिंटर भी हो सकता है, कोई भी चाहे
पेरिफेरल डिवाइसेस हो या कंप्यूटर्स हो, स्कैनर्स हो, व्हाटएवर, ये एक लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया में कवर करते हैं. मतलब आपका घर है, आपका ऑफिस है, आपकी लैब है, आपका स्कूल है, तो ऐसे छोटे एरिया में आपका लैन का यूज़ हो जाता है. मीन्स अप टू 1 किलोमीटर रेंज, और यू कैन हैव द स्पीड ऑफ 100 Mbps और इवन यू कैन रीच इट टू 1 Gbps स्पीड, राइट? क्योंकि थोड़ा ही कनेक्ट करना पड़ता है, ज़्यादा एरिया नहीं होता है, दैट्स वाई. अनदर वन जो आपका है दैट इज मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में क्या होता है? इसमें आपके डिफरेंट जो लैंड्स होते हैं, जो हमने कहा ये मानो ये कुछ कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, ये डिफरेंट जो कुछ, ये एक लैन सिस्टम है. यहाँ पर आपका दूसरा मानो है, ये आपका दूसरा लैन सिस्टम है. तो जो ये लैंड्स आपस में कनेक्टेड होंगे, दिस मेक्स द मैन. ये मतलब एक टाउन या सिटी में होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एक फुल टाउन को ज्वाइन करता है, कंबाइन करता है. तो ये एक मेट्रोपॉलिटन मतलब 100 किलोमीटर्स की रेंज तक इसका बढ़ जाता है ये एरिया. उसके बाद आता है आपका वैन, वाइड एरिया नेटवर्क. वाइड एरिया नेटवर्क. तो वाइड एरिया नेटवर्क में क्या होता है? ये ब्रॉडर एरिया को कनेक्ट करता है. देखिए आप, जैसे ये आपका है लैन, दिस इज योर लैन, और यहां से आप देखिए ये आपका वर्ल्ड है. इसमें आपके डिफरेंट कंप्यूटर्स जो कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ. तो ये आपका बनता है वैन, जो आपका जैसे गूगल है, फेसबुक है, जो आप कनेक्ट करते हैं इनके साथ, तो ये आपका इसमें आ जाता है. ठीक है? सो this was about the basic introduction of your networking, that what actually network is, what are the advantages of networks, about the architectural model of networks, in which we discussed P2P and client server model, and what are the different types of networks, in which we had LAN, MAN, WAN. Now what is PAN? PAN is personal area network. In PAN we have actually in your mobile phone, smart watch, सारा जिसमें आपका ये पर्सनल एरिया को जो आप स्मार्ट थिंग्स यूज़ करते हैं. CAN इज कैंपस एरिया नेटवर्क, जो आपका कॉलेज में एक नेटवर्क बनता है, दैट्स कैंपस एरिया नेटवर्क. SAN इज स्टोरेज एरिया नेटवर्क्स. स्टोरेज एरिया नेटवर्क्स में आप क्या करते हैं, जैसे कि एक कॉमन मॉडल बीच में होता है, सर्वर मॉडल, और बाकी जो आपके चाहे लैपटॉप्स है, मोबाइल्स है, स्मार्ट वॉच है, सारे का डेटा आप इसमें रखते स्टोर करते हैं कहीं पे, कुछ डिवाइस से आपके हैं. तो ये आपका बनता है SAN, स्टोरेज एरिया नेटवर्क. इट्स फाइन. तो विद दिस वी कंप्लीटेड अवर नेटवर्किंग ओवरव्यू. थैंक यू वेरी मच.